ویلکم بیک، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں منی بجٹ پر، کیونکہ اب حکومت منی بجٹ لے کر آ رہی ہے۔ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ مایا، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور مجھے بہت ہی اہم سوال کرنا ہے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ آج ہونے والے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے وہ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لائن پر ہیں، تو ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے ان کی۔ السلام علیکم مزمل اسلم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ مزمل صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا سر یہ کہ میں ایک عام آدمی کا سوال کرنا چاہوں گی۔ ویسے ہی ہم مہنگائی کو لے کر پریشان ہیں، ویسے ہی بجٹس کو لے کے پریشان ہیں، ہم گیس اور تمام اور اومنی کرون کو بھی لے کے پریشان ہیں۔ یہ منی بجٹ کیا ہے؟ ہمیں ذرا پلیز یہ اس پر روشنی ڈالی گیا، ہے کیا دراصل منی بجٹ؟ جی دیکھیں، منی بجٹ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سال کے بیچ میں اگر آپ نے کچھ تخمینے تبدیل کرنے ہو اپنے ٹیکسز کے یا کوئی اور چیز کے، تو وہ جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے آپ بل پیش کرتے ہیں اس کا، اور اس پارلیمنٹ میں جب بل کو پیش کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ کو اکثریت سے اس کو پاس کرانا ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے منی بجٹ۔ ویسے تو یہ پورے سال جو ہے پارلیمنٹ میں بل جاتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو لیکن خصوصی طور پہ اگر کوئی ٹیکس کی یا کوئی اخراجات سے ریلیٹڈ کوئی چیز بجٹ کے دوران آ جاتی ہے، یعنی سال کے دوران آ جاتی ہے، اور وہ اگر چلی جاتی ہے پارلیمنٹ میں، تو اس کو منی بجٹ کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس ایسا اس کا خوف ڈالا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا مزمل اسلم صاحب، یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بتائے گا کہ جیسا کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، 350 ارب کے جو ٹیکس چھوٹ اب ختم کر دی جائے گی، اس کے بعد عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم عوام بولتے ہیں تو اور خاص طور پہ جب ہم ٹی وی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس عوام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غریب آدمی، یا بالکل جو جسے کہتے ہیں کہ پورا جسے کہتے ہیں وہ شخص، اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو 350 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں، یہ جو ہے عام عوام کی استعمال کی چیزوں پہ نہیں لگ رہے۔ مثال دیتا ہوں کہ یہ ٹیکس نہیں لگ رہا، یہ ٹیکس چھوٹ، یعنی کہ یہ جو ٹیکس میں چھوٹ دی ہوئی تھی سیلز ٹیکس میں، وہ واپس لی جا رہی ہے۔ اب جو میں مثال دیتا ہوں کہ موبائل فون، آئی فون ہے، یہ 2.5 لاکھ روپے کا فون ہے، اس پہ بھی ایک ٹیکس چھوٹ تھی، تو اب وہ ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی۔ تو یہ ایک عام عوام کا انسٹرومنٹ نہیں ہے، مطلب تھوڑے سے پیسے والے لوگ لیتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف امیر لوگ لیتے ہیں، ایک درمیانے طبقے کے لوگ بھی لیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ پاکستان میں جو ہے ہم نے چھوٹ دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ذرائع مبادلہ میں نقصان ہو رہا ہے ہمیں، اور بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کچھ ٹیکسز کو جو ہے، یعنی کہ 17% ٹیکس ہم لے سکتے ہیں، وہ کسی میں ہم نے 10% لیا ہوا ہے، کسی میں ہم نے 5% لیا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ہم 17% پہ واپس لے آئیں گے۔ بہت سارے ایکسپورٹ کے کارخانے ہیں جن کو ہم نے 0 ریٹڈ کیا ہوا تھا، یعنی کہ 0 ریٹڈ سے مطلب ہم ان کو جو ہے ٹیکس نہیں لے رہے تھے ان سے، تو اس کو ہم بہتر کر دیں گے۔ تو یہ جو عام آدمی کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں سے بالکل نکل چکی ہیں۔ اب عام آدمی کی استعمال کی چیز جیسے کھانا پینے کی چیزیں ہیں، اس پہ ہم نے جو کھلی چیزیں اس پہ نہیں ہے، ویسے ہی فرٹیلائزر، کھاد جو ہے، کھاد سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک کی خوراک تیار ہوتی ہے، ہم نے اس کو ایگزمپٹڈ رکھا ہے، پیسٹیسائڈس کو ایگزمپٹڈ رکھا، ہم نے ٹریکٹرز کو ایگزمپٹڈ رکھا، تو بہت ساری چیزیں جس سے عام آدمی متاثر ہو سکتا ہے اس کو ہم نے باہر رکھا، اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ عام آدمی متاثر نہیں ہو سکتا، اس کو ہم نے جو ہے واپس سے اس کی چھوٹ کو چھوڑی ہے، کیونکہ ہمیں شدت سے ضرورت ہے ٹیکسز کی۔ بالکل اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ضرور بتا دیں کہ عوام کو بجٹ سے بہت ساری امیدیں ہیں، عوام کیا امیدیں یہ لگائے رکھیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ عوام کو بجٹ سے امیدیں ہیں، عوام کو اس حکومت سے امیدیں ہونی چاہیے، اور یہ حکومت ابھی آپ کو
2-3 दिन पहले की बात बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में खाद की बोरी 10,500 रुपए की है और पाकिस्तान में उसका रेट 1800 है, लेकिन कुछ मुनाफाखोरों ने उसका फायदा उठा के उसको 2400, 2300, 2400 तक ले गए थे। 4 दिन पहले जो है प्राइम मिनिस्टर की उस पे जो है सुपरवाइजन में जो है मीटिंग में सरबराही में, और फैसला हुआ कि जितने भी लोगों ने जो है इसमें मुनाफाखोरी की है उनसे जो है उनका माल जब्त कर लिया जाए, फर्टिलाइजर कंपनीज को बोला जाए। तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसमें आज अखबार कह रही थी 400 रुपये है। अगर ऐसा हो गया है तो ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं तब्दीली आ गई। अब ये हुकूमत को अंदाजा हो गया है कि ये इस तरह के जो बीच में माफियाज हैं, डीलर्स हैं, इनको निपटना किस लिए, कानून को हरकत में कैसे लाना है। यही चीज आज से 15 दिन पहले चीनी में हुई थी, 20 दिन पहले आपको याद होगा एकदम 150 रुपये कर दी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का सीजन भी शुरू हो गया। अब 90 रुपये से किलो जो है होलसेल का रेट जो है कम हो गया, 88-87 में होलसेल पे बिक्री है। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। खाने पीने में जो मेन चीज़ें होती हैं, प्याज, टमाटर, दाल, चीनी, इनकी पिछले साल के मुकाबले में सतह से जो है ना इस साल जो है 25 से 30% बहुत सारी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। लेकिन खाने की तेल की बहुत बढ़ गई है, 100%। सरसों के तेल की बढ़ गई हुई है। अब हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तो आलमी मार्केट में कुछ नीचे आ जाए तो हम वहाँ से आवाम को इसमें रिलीफ दें, और अगर नहीं तो हमने अपने टैक्सेस काफ़ी छोड़े हुए। पेट्रोल आपके सामने 50 रुपये लीटर हुकूमत ने छोड़ा हुआ है, सेल्स टैक्स 0 कर दिया उसको। लेकिन ये कि फिर भी हम समझते हैं कि 145 रुपये बहुत बोझ है एक आम आदमी के लिए। लेकिन साथ साथ जिनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो पैसे वाले हैं, वो इसके जो है बेनिफिशियरी भी हो रहे हैं। ये जो 50 रुपये हमने छोड़ा है उससे क्या होता है कि एक जो है वो गाड़ी में 10,000 का पेट्रोल डालते हैं तो 3,200 रुपये का उसको फायदा हो जाता है एक बड़ी गाड़ी वाले को, और एक आम आदमी जो 150 रुपये का पेट्रोल डालता है उस तक वो एडवांटेज नहीं जाता जैसे वो लेता है। लेकिन क्या होता है कि जब मैं और आप टीवी में बात करते हैं हाय आम आदमी का कितना नुकसान हो रहा है, ये 50 रुपये लीटर हुकूमत ज्यादा ले रही है, तो वो बेसिकली अगर वो हमें मिल जाए हुकूमत को वो टैक्स, तो उससे हमें 500 से 600 अरब रुपए मिलेगा। और आपको पता है वो 600 अरब रुपए कितना होता है कि अगर पूरे साल में 2 करोड़ खानदान को हम लोग 2,500 रुपये महीने का देना शुरू कर दें तो वो पैसे खत्म ना हो। लेकिन जब हम आम आदमी बोल देते हैं तो उसमें आम आदमी बेचारे को नहीं इतना फायदा पहुंच रहा होता। उसमें खास तो नहीं बोलूंगा, बड़े लोग या मिडिल क्लास लोग वो उसके बेनिफिशियरी होते हैं, और वो सबको जो है ना वल्गरा के आगे कर रहे होते हैं कि आप बोले आम आदमी ताकि हमारा फायदा चलता रहे। अच्छा मुजम्मिल साहब, 350 अरब रुपए की टैक्स छूट की जो है इससे मुतालिक जो है वो काफ़ी इस वक्त ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। कुछ बता सकते हैं इसके हवाले से कि हमें इस वक्त किन सेक्टर्स की तरफ आपका रुख है, या क्या इस वक्त हमारे कहाँ पर छूट जो है वो होगी टैक्स के हवाले से? देखिए पहले तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ एक आम आदमी के सवाल जवाब के हिसाब से, क्योंकि लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पाकिस्तान की मजमूई आमदनी 55,000 रुपये है। कितनी है? 55,000 रुपये। ठीक। और ये ऑफिशियल आमदनी है, इससे कई ज्यादा है क्योंकि आप सबको पता है बहुत सारे लोग आमदनी छुपाते हैं और हमारा डाटा भी अच्छा नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन हम इस 55,000 की फिगर को पकड़ लेते हैं। 55,000 में से समझ ले कि हुकूमत पाकिस्तान अवाम को कह रही है कि 350 रुपये वापस और लूंगी मैं आपसे टैक्स की बदले। अब अवाम में मैंने खास और आम अवाम नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान को शामिल करेंगे। तो मुझे एक बात बताएंगे, अगर आपकी जेब में 55,000 रुपये आ रहे हैं और मैं उसमें कहूँ कि 350 रुपये की कटौती आपकी होगी, और तो शायद आपको समझ आ जाए बात कि चले इतना मैनेज हो सकता है। उस 350 से अच्छा ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये हुकूमत अपने पास नहीं ले लेती। जब हुकूमत लेती है तो वो जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है डेवलपमेंट के थ्रू या जो है ये जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू। अच्छी चीज ये है कि देखें IMF ने हमसे 700 अरब रुपए बोले थे कि आप टैक्सेस लगाएं, 450 अरब रुपए के करीब। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब मतलब बराह रास्त मौजूद थे। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शाहजेब, कुछ बदलते हुए दूसरे मौसम की भी कुछ बात करेंगे हम? या बिल्कुल, मुल्क का मौसम जो है वो ओवरऑल बदल रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मसाइल तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब ये कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर भी है, कुछ लोग सर्दी को बड़ा एंजॉय करते हैं। वैसे मैं तो बहुत बार करती हूँ भाई, मुझे बड़ा पसंद है। मैं पैदा ही सर्दियों में थी तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ सर्दियों के मौसम को। मरी का मौसम बदल रहा है और वहां पर भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे हैं जो हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पहले उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताइएगा। अहमद अब्बासी, क्या डिटेल्स है आपके पास?
जबल मलका कोसार मरी का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। दिन के वक्त धूप से सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन शाम होते ही सर्दी जो है उसमें इजाफा हो जाता है। यहाँ पर जो सयाह मौजूद हैं वो इस खूबसूरत मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय करते नज़र आते हैं। दिन भर नीले आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद रहते हैं, जिससे यहाँ के जो नज़ारे हैं वो मज़ीद निखर कर सामने आ जाते हैं। ख़ज़ां का मौसम भी जारी है, पतझड़ भी जारी है और मुख्तलिफ़ मकामात पर पतझड़ से जो यहाँ का मौसम और नज़ारे हैं वो मज़ीद खूबसूरत हो जाते हैं। आपको पता चलूँ कि गुज़िश्ता साल इन दिनों यहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था और सर्दी भी जो है वो जोबन पर थी, लेकिन इस बार दिन भर धूप रहने से यहाँ का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है और जो सियाह यहाँ पर मौजूद हैं वो बर्फबारी के इंतज़ार में हैं कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो तो वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो मौसम है ये आइंदा हफ्ते इसी तरह बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन बता रहे थे। और माया जो मनाजिर आप देख रही ना, ये रुई के गाले जब गिरते हैं इस्लामाबाद में खास तौर पे और आपके मरी की साइड पे धुंध शाज़ेब इज अनबिलीवेबल। मैं तो कहनी बस पंजाब है वाला सिनेरियो है। मतलब उस वहाँ का मौसम, वहाँ की ठंड, वहाँ की जब आपकी सुबह होती है और जब आप निकलते हैं तो आपको एक हल्की हल्की सी एक ठंडक महसूस होती है अपने चेहरों पे, और वो है दरअसल कुदरती अल्लाह पाक की अता की हुई खूबसूरत। और इतनी देखिए मुश्किलात तो होती हैं, कहते हैं ना विद एवरी चैलेंज देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड ऑप्शंस आल्सो। सो हर चैलेंज के साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज जरूर आती हैं, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे मुल्क में हर मौसम को एंजॉय करने का शाज़ेब अल्लाह पाक ने कैसा मौका दिया है। बिल्कुल। अब आप जैसे कि कराची में आप खांसी एंजॉय करें खांसी एंजॉय करें, इवन लाहौर में भी जो का जिक्र कर रही है वो है तो बहुत खूबसूरत और उसका मजा ही बहुत आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो उससे परेशानियां हैं वो भी बहुत बढ़ जाती हैं। ड्राइविंग में बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो सर्दी के साथ साथ फॉग को बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़े खुश होते हैं और इवन स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स पर निकल जाते हैं कि हम इस फॉग को थोड़ा एंजॉय करें, लंबे रूट्स पर जाकर। बिल्कुल। अब मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं मौसम को लेकर और किस चीज के लिए आगे आने वाले वक्तों में तैयार रहना है, किससे मिलवा रहे हैं हम सबको। बिल्कुल, हमारे साथ वेदर मैन मौजूद हैं इस वक्त जिनसे हम बात करेंगे। जवाद मेमन साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक है। बिल्कुल। ये आपकी पर्सनैलिटी में तो बदलाव आ रहा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा मुल्क है ना उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है मौसम में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। तो जरा बताएं कि मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें सर्दी में इस बार कितना इजाफा होगा, कितनी सर्दी पड़ेगी? देखें अभी जो है वो अब तकरीबन जो है वो सर्दी का मौसम अब तकरीबन मुल्क में जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इंक्लूडिंग जो हमारे जो साउदर्न एरियाज़ हैं, स्पेशली कराची में भी आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि ड्राइव इन इंक्लूजन्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो अब जो हैं ये डाउन होना शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें बीच में अब कोई गैप नहीं है, ये मज़ीद जो है बातजदीद जो है वो टेम्परेचर्स वगैरह डाउन होते रहेंगे। बारिशें जो हैं वो फ़िलहाल जो है वो थोड़ा हमसे दूर हैं, तकरीबन एक हफ्ता है जिसमें एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नेक्स्ट वीक के एंड पे नज़र आ रहा है। बारिश होने के इम्कान है कराची में नहीं, ये नॉर्दर्न एरियाज में पंजाब रीजन में जहाँ पे स्मोक वगैरह भी जाता है, तो वहाँ पे उम्मीद है कि काफी हद तक और वहाँ बारिश तो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मोक की वजह से यही कहा जा रहा था, आप भी पहले यही फरमा रहे थे कि अगर बारिश होगी, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन के लिए भी ट्राई कर रहे थे, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है होना, ताकि स्मोक का खात्मा हो। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मैं तो हम सुबह में आती हूँ, ये तो माशाल्लाह हैंडसम लग रहा होता है रोज सुबह में जैकेट पहन के, उसकी आप देखिए माशाल्लाह ड्रेसिंग मुझे देख के कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं शॉल ओढ़ के आती हूँ। बट ऑनेस्टली आई थॉरली एंजॉय विंटर्स। हम लोग इंतजार करते हैं भाई वो स्वेटर कब निकलेंगे, वो कंबल कब निकलेंगे, वो जुराबें कब निकलेंगी, और पूरे मुल्क में इंतजार होता है कि जब ठंड आए, और स्पेशली कराची में। तो कराची के हवाले से जरा सा मैं चाहूंगी थोड़ी सी रोशनी अगर डालें जवाद भाई, कि कैसा मौसम अभी दर्जा हरारत कितना ड्रॉप होने वाला है, हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए और किन चीजों को एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए कराची वालों को बस अब बहुत थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है, उसके बाद इंशाल्लाह जैकेट्स और स्वेटर वाला मौसम जो है वो अनकरीब है। उम्मीद यही है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से यानी कि 6-7 तारीख से जो है वो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। लोअर रेंज जो हम देख रहे हैं फिलहाल मिड दिसंबर तक तकरीबन 9 से 12 डिग्री तक जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में रहेगा, जिसमें
नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो एरियाज हैं, जो हमारे खुले एरियाज हैं, सरजानी, मलीर वगैरह, वहाँ पे सिंगल डिजिट्स भी जा सकते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो सिंगल डिजिट्स में ऑब्वियसली आपको जैकेट्स और सब चीज़ों की और जरूरत है। हमारे जो अली भाई हैं वो जहाँ रहते हैं वहाँ ज्यादा ठंड है, जब वो आते हैं सुबह में बताते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, आप लोगों की बिल्कुल तरफ ऐसा तो ही है, कम बिल्कुल ठंड ऐसा ही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम हमेशा कहते हैं एक कोयटा की हवा है जो कराची में आ जाएगी और हमारी कुल्फी जम जाएगी, तो एक कोयटा की हवा कब आ रही है कराची? देखिए, कोयटा की हवाएं जो हैं वो पिछले 2-3 दिन से आप नोट कर रहे हैं कि थोड़ा जो है विंड डायरेक्शन चेंज हो गया है, ह्यूमिडिटी लेवल्स डाउन हुए हैं, ड्राई विंड्स आना शुरू हो गई Dry हो गया हैं, मौसम। और अगेन 5 से 6 दिसंबर तक जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसकी अभी हमने बात की है, जो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, ये जैसे ही क्रॉस होगा 6-7 दिसंबर से, तो काफ़ी अच्छी ठंडी जो है वो कोयटा की हवाएं जो हैं वो इस तरफ रुख करेंगी, साइबेरिया की हवाएं जो ये कहलाती हैं, और इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि प्रॉपर जो विंटर सीजन जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू जवाद भाई, आपके वक्त है, आपके आने का आपको बार बार तंग करते रहेंगे, सर्दियां नहीं आई तो आप देखिएगा कि ये जैकेट पहनते हैं, मुझे भी जैकेट्स पहननी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जवाद भाई मौजूद थे, हमें वेदर के बारे में बता रहे थे। और अब हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। एक लाइटिंग मैन हमारे पास हैं जो करतब दिखाते हैं, आग से भी, लाइट से भी, और इनका जो करतब है वो देखने लायक है, बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले आप ये देखिए। मैं 92 से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा होया करता था तो जब मैंने अपने एक अंकल को देखा वो इस तरह सारी चीज़ें कर रहे होते थे, एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते थे। मैंने देखा, उनको शौक़ हुआ मुझे कि मैं भी उनसे पूछा कि मुझे भी सिखाएं। वो कहने लगे बहुत टफ़ चीज़ है, तुम नहीं कर सकोगे। तो मैंने कहा कि आप मुझे सिखाएं, मैं देख के मुझे जितना अच्छा लग रहा है, जब मैं करूँगा तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी। लोग तो ये भी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो लग रहा है कोई बाहर से आए हुए हैं। नहीं भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माशाल्लाह से। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे टैलेंट हैं माशाल्लाह से, जो देख के बाहर वाले दंग हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ आ गया है। मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह से 24 लड़के हैं, और 24 लड़कियों को अगर मैं किसी ग्राउंड में उतार देता हूँ या PSL के लिए मैं कुछ कर देता हूँ, परफॉर्मेंस कर देता हूँ, फायर स्टिक हो, LED स्टिक हो, रिंग सर्कल हो, तो लोग वाकई देख के इसको इंटरटेन होंगे, बहुत खुश होंगे। अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो बेहतर से ये होगा कि हमें PSL के लिए में बुलाया जाए, PSL के अंदर ये सारी परफॉर्मेंस करें। फिर हुकूमत हमें और सपोर्ट करे कि हम ओलंपिक के लिए ट्रैवल करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान में इसे वक्फे का वक्त हुआ जाता है, और हम अभी गए और अभी आए। रहिएगा हमारे साथ और बकौल शाहजेब के जुड़े रहिएगा।